My lovely students, welcome to Mathological. This is the 21st session of CAT DILR100 series. In this series, we are doing total 100 DILR sets for CAT 2026 examination. Start करते हैं session को. And if you have not already subscribed, then make sure to subscribe channel. Also press the bell icon. तो साथ में Telegram and WhatsApp channel भी join कर सकते हो. You can check out the link from the description. And session को भी like कर देना if you are liking the content. So this is the DILR set for this session, followed by 5 questions. So pause the video and try to solve it yourself first, then only watch the solution. So we have been given a table with some missing values, and we have also been given a graph which represents rice reserves in million tons for some years. The Ministry of Agriculture compiled the data regarding the total rice production in million tons of 5 major states: North, Riverlands, Westerlands, Stormlands, and Vale across 4 consecutive years from 2022 to 2025. All the values are distinct integers from 21 to 40, each appearing exactly once. So total जो values हमारे given है for 2022 for 5 states, for 2023, for 2024, 2025, those values are from 21 to 40 and each appears exactly once. ठीक है? And all these values are obviously for total rice production million tons. Okay. And each has been appearing exactly once because 5 years का data है for 4 years का data है for 5 states. तो 5 into 4 20 values होंगी from 21 to 40. A, B, C, D, and E are masked values for the given states in the table in no particular order. यानी कि A, B, C, D एक्चुअल स्टेट्स का नाम तो है नहीं है. स्टेट्स के नाम क्या है? नॉर्थ, रिवरलैंड्स, स्टॉर्मलैंड्स, वेस्टरलैंड्स एंड वेल. तो ग्राफ में तो हमें वो स्टेट्स नेम्स आर गिवन, but in the table A, B, C, D are the masked names. So A could be North or Riverlands or Stormlands or any of the 5. Similarly for B, C, D, and E. Similarly in the bar graph, P, Q, R, and S are masked values for the given years. यानी कि years का values हमें टेबल में गिवन है, बट सेम हैज नॉट बीन गिवन इन द बार ग्राफ. बार ग्राफ में ईयर पी क्यू आर एस मेंशन्ड है. पी क्यू आर एस में से कोई एक 2022 होगा, कोई 2023 होगा, एंड सो ऑन. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा विच ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच अल्फाबेट. ओके. और फिर फाइनल डेटा कि राइस रिजर्व्स फॉर ईयर पी एंड एस आर 148 and 156 million tons respectively. Now questions, there are 5 questions. First 2 questions numerical values देनी है. Third question, what is the value of rice production for stormlands? Cannot determine भी ऑप्शन में गिवन है, हो सकता है. Which state produced minimum quantity of rice from 2022 25? वहाँ पे भी चलो ठीक है, बाद में लास्ट स्टेटमेंट है हमारा डेफिनेटली फॉल्स. ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. ओके. सो ऑलरेडी में गिवन क्या है, गिवन डेटा क्या क्या गिवन है फॉर 5 स्टेट्स ए बी सी डी in 2023. Production for state A is 37 and in 2023 production for state C is 21, production for state D is 39. तो ये कुछ डेटा हमें गिवन है और साथ में डेटा गिवन है ग्राफ में भी. और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऑल द वैल्यूज रिप्रेजेंटेड आर डिस्टिंक्ट डिजिट्स फ्रॉम 21 to 40, each appearing exactly once. So every value from 21 to 40 will be appearing exactly once. तो क्या हम यहाँ से सम निकाल पाएंगे? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डेफिनेटली निकाल सकते हैं. ठीक है, 21 से 40 तक का सम तो निकाल ही पाएंगे. सम क्या आ जाएगा हमारा? सिंस दीज आर values in arithmetic progression, so sum will be first term, first plus last by 2, which is average, multiplied by 20. So 61 by 2 into 20, 61 into 10, 610 will be total sum of all the values given. So total sum of all the values given will be 610. Okay, clear? Apart from that, since each value is appearing exactly once, so for example, for state A in 2023, total production is 37 units, 37 million tons, to be precise, 37 units. और यही same 37 units हमें ग्राफ में भी दिख रहा है for this bar. So that implies that state A must be that represented by the blue line, and blue line is for north. So state A must be north. And not just that, since that is also being given in year P, so year P must be 2023. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे? बिकॉज एक भी वैल्यू हमारी रिपीट तो होने वाली है, रिपीट हो रही होती तब फिर कंफ्यूज होते हैं, बट सिंस एवरी वैल्यू इज कमिंग वंस ओनली, सो दैट इज वाई 37 वैल्यू हमारा मैच कर रहा है. सो दैट मस्ट बी फॉर स्टेट ऑफ नॉर्थ बिकॉज दैट इज इन द बार ग्राफ एंड दैट इज ऑल्सो फॉर ईयर 2023. नेक्स्ट हमें डेटा गिवन है 21 फॉर रिवरलैंड्स और सो सी विल बी रिवरलैंड एंड 39 is for stormland, so D must be stormland. Okay, now next for year Q 23 and 31 match कर रहा है हमारा, so 31 is also there in 2025, so this must be year 2025. Okay, year 2025 and 31 is for westerlands, so
स्टेट ई मस्ट बी वेस्टरलैंड, लास्ट हमारा बच गया नॉर्थ, रिवर, स्टॉर्म, वेस्टर हो गए, तो स्टेट बी मस्ट बी वेल। एंड 23 इज द डेटा फॉर रिवरलैंड, और रिवरलैंड ऑलरेडी हमने डिनोट किया है विद स्टेट सी, सो स्टेट सी का डेटा फॉर 2025 विल बी 23 मिलियन यूनिट्स। नेक्स्ट ईयर 40 एंड 30, अब ये तो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज दिस कुड बी 2022 और 2025, एंड लास्ट ईयर एस 26 और 27, अभी इसका भी हम पक्का नहीं कह सकते, बट यहाँ पे फिर भी कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिवरलैंड है हमारा, रिवरलैंड के लिए वी बीन गिवन डेटा 21, 33 एंड 23, ओके, और रिवरलैंड रिप्रेजेंट किया है कहाँ से हमारा, नहीं रिवरलैंड तो आगे डेटा नहीं आ रहा है, ग्रीन का किसका है, ग्रीन है वेस्टरलैंड का, और वेस्टरलैंड के लिए डेटा आ रहा है हमारा 38 एंड 31, ओके, 38 एंड 31 आ रहा है फॉर 2024 2025, 2025 का डेटा ऑलरेडी गिवन है, ये डेटा हमें गिवन है 40 यूनिट्स, एंड दिस इज फॉर ईयर आर, सो दिस इज ईदर 2022 और 2024, ओके, एंड फॉर वेस्टरलैंड्स डेटा हमें गिवन है 2024 का विच इज 38 यूनिट्स, 38 मिलियन टन्स, तो 38 मिलियन टन्स तो डेटा है नहीं हमारा, 40 मेंशनड है, 40 मेंशनड है, तो ये 40 किसके लिए होगा, 2023 के लिए हो नहीं सकता बिकॉज 2023 इज ईयर पी, तो दिस मस्ट बी फॉर 2022 ओनली, एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, 2022 में 40 होगा, एंड देन दिस ईयर आर विल बी 2022 एंड हेंस ईयर एस विल बी 2024। ठीक है, शांति से एक बार पॉज करके सोच लो इस बात को, क्या हमने आइडेंटिफाई किया, हमें पता है कि ईयर वेस्टरलैंड के लिए, नॉट ईयर, वेस्टरलैंड के लिए डेटा हमें गिवन है फॉर 2024 एंड 2025, 2025 को ऑलरेडी हमने मैच कर लिया विद ईयर क्यू, बट 2024 का डेटा इज 38 यूनिट्स, और 38 यूनिट्स तो कहीं पे मेंशन नहीं आ रहा है हमारा फॉर वेस्टरलैंड, बट वेस्टरलैंड का डेटा हमें आ रहा है दैट इज 40 मिलियन टन्स फॉर ईयर आर, so that must be for 2022 because और कोई ऑप्शन होना पॉसिबल ही नहीं है, so that must be for 2022 only, and hence year R will be 2022, year S will be 2024, okay, तो फिलअप कर देते हैं फिर 30 हमारा डेटा आ रहा है फॉर वेल इन 2022, तो वेल में डेटा आ गया 30, एंड देन 26 एंड 27, 26 इज डेटा फॉर नॉर्थ इन 2024, एंड 27 इज डेटा फॉर स्टॉर्मलैंड्स इन 2024, स्टॉर्मलैंड्स 27, अब इतनी वैल्यूज तो हमारी फिलअप होगी, फिर एडिशनल डेटा में गिवन है राइस रिजर्व्स फॉर ईयर पी एंड एस आर 148 and 156 million tons respectively. Year P is equal to 2023. तो टोटल सम हमारा आ रहा है फॉर ईयर P 148 and for year S which is 2024 this is equal to 156. तो यहाँ से रिमेनिंग सम मिल जाएगा बिकॉज 148 प्लस 152 is 300, 456, सो बच गया हमारे पास 154 फॉर ईयर 2022, क्योंकि टोटल सम तो हमें पता ही है 610। अब जो वैल्यूज पहले पता लगा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देखेंगे कौन कौन सी वैल्यूज हमारी ऑप्शंस बचे हैं, उनमें से क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं। फॉर 2024 4 values are already given, 26, 33, 27 and 38, 27 plus 33 60, 60 plus 26 86, 86 plus 8 94, 124, 124 तो आ ही रहा है, 156 में से 124 सब्ट्रैक्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगा 32, 32, 32 will be production for whale in 2024। और क्या वैल्यू पता लगा सकते हैं, और अभी हाँ 131 आ रहा है हमारा टोटल सम फॉर वेस्टरलैंड्स, तो 40 प्लस 38 विच इज 78, 79, 109, सो बच गया 22, 22 मस्ट बी प्रोडक्शन इन 2023, एंड 22 वैल्यू हमें मिल गया, तो 148 सम आ रहा है फॉर 2023, टोटल सम यहाँ पे कितना है 39 प्लस 21 60, 97, 99, 119, सो बच गया 29, तो 29 मस्ट बी द प्रोडक्शन ऑफ व्हेल इन 2023। क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो अब वेल का टोटल सम निकाल सकते हैं, 30 प्लस 29 59, 91, 97, 127, 127, नाउ 5 वैल्यूज आर रिमेनिंग, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन सी 5 वैल्यूज हमें बची हैं 21 से लेकर 40 तक, उनमें से ही कोई एक ऑप्शन पॉसिबल हो, क्योंकि वहां से कंस्टेंट समय पर लिमिटेड ही बचेंगे। ठीक है, सो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 21 इज देयर, 22 इज देयर, 23 इज ऑल्सो देयर, 24 is not visible, so 24 is a missing option, 25 is also not visible, 25 is a missing option, 26 is there, yes it is there, 27 is there, 28 is also not there, then 29 is there, 30 is there, 31 is there, 32, 33, 34 is not there, 35 is also not there, 36, 37,
and 38, 39, 40, all are there. So these are the 5 options: 24, 25, 28, 34, and 35. These will be the possible options in the remaining 5 places. So sum is 152 for year 2025. Remaining values कितनी बची हमारी? 36, 23, that is equal to 59 and 60, 90. 90 sum आ रहा है, 62 बच गया for remaining 2 values. So can we form 62 with any 2 values out of these given 5 options: 24, 25, 28, 34 and 35? So 24 से तो 62 बना नहीं पाएंगे. The only possible cases when we are adding 28 and 34. So either 28 will be production for north in 2025 and 34 for storm, or vice versa. दो options यहाँ से रहेंगे, 28 and 34 or 34 and 28. Okay, now this sum here 118, that is also given. ठीक है, so यहाँ पे 118 sum आ रहा है. 39 plus 27 was already equal to 46 and 66. 66 आ रहा था, बच जाता है उसके बाद कितना? 52. 52 बचता है. 34 में 52 बनाने के लिए 18 ऐड करना पड़ेगा, बट 18 तो वैल्यू है ही नहीं. 28 के साथ में 24 ऐड हो जाएगा. सो दैट इम्प्लाइज दैट 34 से हम ऑप्शन बना नहीं पाएंगे. सो 34 is not here, 34 must be here, and 28 is not here. So value for 2025 for north is equal to 34 and for storm lands is equal to 28. तो ये वैल्यूज फिक्स होगी. 34 and 28 are utilized. 24 is also utilized, बच गया है 25 and 35. और फिर एडिशनल हमारे पास कंस्टेंट कोई अवेलेबल है? कुछ भी एडिशनल कंस्टेंट नहीं है. यानी कि दैट एम्प्लाइज दो केसेस हमारे बनेंगे, या तो 25 होगा फॉर नॉर्थ, 35 फॉर रिवर लैंड्स, और वाइस वर्सा, बिकॉज सम तो 150 हो जाएगा दोनों ही केसेस में, और 35 फॉर नॉर्थ and 25 for river lands. Okay, sum for north overall in 4 years, that will be 25 plus 37, that is equal to 62, and 88 and 34, so 92, 122. So either it is 122 or it is 132. Two options are possible. And for river lands, 35 plus 21, 56, 89, 92, 112 or 102, 112 or 102. So this is our final data for this question. Okay, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, what is the total rice production in million tons in the state of Wales? Total rice production in the state of Wales. So the answer for this question is 127 million tons. Okay, what is the total rice production in million tons in the year 2022? ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देना हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि मिलियन टन्स में डेटा गिवन था. अगर बिलियन यहाँ पे नहीं मेंशन होता, हो सकता है मिलियन की बजाय 1000 मेंशन होता या कुछ और मेंशन होता, तो अकॉर्डिंगली हमें अपना जो आंसर उसको एडजस्ट करना पड़ता, स्पेशली थीटा क्वेश्चन ऑब्वियसली, बिकॉज वहाँ पे फिर हमें ऑप्शंस तो गिवन नहीं होंगे. व्हाट इज द टोटल राइस प्रोडक्शन इन द ईयर 2022? तो इन 2022 टोटल राइस प्रोडक्शन इज 154 मिलियन टन्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइस प्रोडक्शन फॉर स्टॉर्म लैंड्स इन द ईयर 2022? राइस प्रोडक्शन स्टॉर्म लैंड्स 2022. सो दैट इज फॉर 20, दैट इज 24. यूनिकली पॉसिबल है क्योंकि दो ही डेटा हमारे पास है, नॉर्थ और रिवर का 2022 का डेटा, विच इज नॉट यूनिकली पॉसिबल. वहाँ पे दो ऑप्शन है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे ऑप्शन यूनिकली हमने फिलअप कर दिया. तो 24 इज द आंसर फॉर स्टॉर्म लैंड्स, विच इज ऑप्शन ए. Fourth question, which state produced minimum quantity of rice from 2022 to 2025? Minimum from 2022 to 2025. So maximum किसका आ रहा है नहीं पता लगा सकते, बिकॉज मैक्सिमम कुड बी फॉर वेल और नॉर्थ, डिपेंडिंग अपॉन 25 आएगा डेटा फॉर नॉर्थ और या फिर 35 आएगा. ठीक है, मिनिमम वैल्यू किसके लिए आ रहा है? मिनिमम फॉर श्योर इज फॉर रिवर लैंड्स, वेदर दैट इज 112 और 102, irrespective of that, minimum is definitely for river lands. Because the second lowest value is 118, which is anyway higher than the data for river lands. So minimum is definitely for river lands, irrespective of actual value. So option B will be the answer. The last question, which of the following statements is definitely false? First option, in the year 2022, rice production by state of North was second highest. 2022, North second highest. So 2022 में we have five values. Western lands के लिए data is 40, which is highest. So this is highest. This value is maximum. Now second highest value 35. अब वो 35 आएगा रिवर लैंड के, तो रिवर लैंड सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नॉर्थ सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा. हमें क्वेश्चन कह रहा है डेफिनेटली फॉल्स कौन सा होगा. तो दिस कैन बी पॉसिबली ट्रू. 50% केसेस है कि ये पॉसिबली ट्रू होगा, तो डेफिनेटली फॉल्स तो ये आंसर नहीं होगा. फर्स्ट स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स तो नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता और ऑप्शन सी आंसर नहीं हो सकता. अब सेकंड को चेक करते हैं. इन द 2025 राइस प्रोडक्शन बाय स्टेट ऑफ नॉर्थ वाज सेकंड लोवेस्ट.
2025 सेकंड लोवेस्ट। तो 2025 में हमारा लोवेस्ट वैल्यू क्या रहा है? लोवेस्ट वैल्यू इज 23 फॉर रिवरलैंड। देन सेकंड लोवेस्ट वैल्यू कुड बी आफ्टर 23, सेकंड लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 28 है, विच इज फॉर स्टॉर्म लैंड्स। Isn't it so? तो डेफिनेटली रिवर नॉर्थ के लिए कह रहे हैं ना स्टेटमेंट तो हमारा। हाँ, तो दैट इज डेफिनेटली फॉल्स, दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। सो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, सेकंड ओनली, because the value for north in 2025 is basically second highest, 36 maximum है for male, and then second highest आ रहा है for north, second lowest नहीं आ रहा है, second lowest आ रहा है for state of stormlands. That is why this is definitely false. तो हमारा सारा के साथ सेट कंप्लीट हो गया. This was a beautiful set. I believe कि सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, कहीं पे भी डाउट नहीं रहा होगा. फिर भी कहीं डाउट रहता है थोड़ा सा भी तो कमेंट में जरूर मेंशन करना. सेशन कैसा लगा, फीडबैक जरूर देना. दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.